Hello everyone, welcome to HW News' podcast, and this podcast is called Newsroom Churcha. First of all, before we start, let me first greet all of you a very, very, very happy New Year. I know the New Year is kind of difficult for us to celebrate because there are restrictions in different parts of the country. Several states have also put restrictions on movement, on going out and celebrations. There are night curfews in some of the states. I know a lot of people are questioning what is exactly the purpose of night curfew, but all the same, there are some restrictions, and I hope you guys are celebrating your New Year with all the safety and taking all the precautions. So, first of all, a very happy New Year. I wish you all a very healthy and prosperous New Year. As always, today we have with us our colleagues. My colleagues are there. Vinay Mishra is there. Vinay, please say hello. हेलो दर्शकों, श्रोताओं कह सकता हूँ श्रोताओं, क्योंकि सिर्फ लिसनर्स ही हैं, देख तो नहीं पा रहे होंगे हमें कोई। तो नए साल की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और सोनू सर भी हमारे साथ में है। Sujit sir is also with us. I think everybody should just say Happy New Year to our viewers so that at least You haven't talked about Gauri, who's sitting right there in front of us. She's shy to talk because she's doing the podcast for the first time. Gauri is looks after Marathi, SW Marathi, Yes. and I can already feel her. I mean, look at her. She's actually nervous. Yes, yes. क्या कुछ पहली बार है सर, तो इसलिए बस. अच्छा पहली बार है तो Gauri is nervous. well, you might have seen her on screen in Marathi channel. So Gauri, just say hi. We like your voice. Yes. Happy New Year to all. So nice. So what is the topic? Let's start with the day's topic, evening's topic. आज हम ये चर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज 1 जनवरी है, नए साल का पहला दिन है। तो हम आने वाले साल के बारे में ही बात करेंगे कि जो इस नए साल की शुरुआत है, कुछ अप्रिय घटनाएं भी सामने आई, जैसे कि एक भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई, मंदिर में हुआ, कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा है। तो कुछ ऐसे भी तरीके से नए साल की शुरुआत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत से लोग आशान्वित हैं, मतलब कि इस नए साल को लेकर बहुत सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं जो नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी इसी उम्मीद में हैं कि जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, 20 और 21, उससे यह साल अलग होगा। और जैसा कि कल आपने एक ट्वीट भी किया था आपने उस ट्वीट के बारे में। क्या ट्वीट किया था उसमें कि चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, चलो आगे बढ़ते नहीं, चलो फिर से चालू कर दिया। चलो फिर से चालू करते हैं, शुरू करते हैं। और कॉपीराइट भी मैंने सोनू को दिया था उसका। मैंने एकदम बकायदा कॉपीराइट सोनू को दिया था। आई हैव पुट सोनूज नेम डाउन देयर। तो इसी स्पिरिट के साथ में मतलब बहुत से दुनिया और देश के लोग चलो फिर से शुरू करते हैं। See, actually, मेरे को लगता है 3 चीज, there are 3 or 4 things that we need to talk about. First is the elections. Elections are going to be very detrimental. 5 states election में who is going to come in and the winning party is going to make this election, who wins and who loses, that is going to make a lot of difference. Actually, आगे चल के in terms of what's going to happen in 2024. So, as people call it semi-finals or so-called, Mahasangram and all that jazz. What all names these guys come out with? Yeah? I mean, how do they come out with these names? Yeah, Mahasangram and all that. ठीक है, जो भी है. So I think that's a very important conversation. So let's talk उत्तर प्रदेश first. उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में हम थोड़ा मतलब विस्तृत ऐसे बात करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव और नोटों का एक गहरा संबंध बनता जा रहा है। पिछली बार चुनाव हुए थे, नोटबंदी हुआ था, पूरे देश की जनता ने को अपने जो भी पैसे थे जमा करने पड़े थे। इस बार कुछ चुनिंदे लोगों के यहाँ पे वहाँ पे नोटों की तस्वीरें ऐसे सामने आ रही हो भी काफी ज्यादा संख्या में। I mean, credit where is due. I don't exactly remember who said it, but I read somewhere on Twitter after those raids that Bhutan's economy was found inside the raid. नहीं, लेकिन अक्सर चुनाव और पैसों का तो हमेशा से मेल रहा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि पिछले 2 इलेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी को एक तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए इन सब चीजों को किया जा रहा है।
डेफिनेटली 2017 में जब यूपी के इलेक्शंस हुए थे तो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो समाजवादी पार्टी को काफी इम्पैक्ट पड़ा था। समाजवादी पार्टी से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी को इम्पैक्ट पड़ा था। और ये ऐसा पहली बार हुआ था, ऐसा बोला जा रहा है ऑफ कोर्स। और दूसरा ये सब कई लोग अटकलें लगाई एलिगेशन जा रही लगाते हैं कि डिमोनेटाइजेशन उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर किया गया था। अभी कितना सही है कितना गलत है ये फिलहाल हम उसको कुछ ये नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन इस बार भी इतने पैसे निकल के सामने आ रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड। लेकिन रॉन्ग पीयूष को पकड़ा है। रॉन्ग राइट दोनों पकड़े गए हैं फिलहाल। रॉन्ग राइट दोनों पकड़े गए हैं। लेकिन राइट जिसके पास इतना पैसा था उस मींस जिसे अभी जिसको रेड किया है उसके पास उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं। अच्छा क्या जिसको क्या ये गलती No, I guess it was स्टोरी just किया था आरती ने ये स्टोरी बता Yes, आरती। I think it was just a comedy of errors, and as I said in that story as well, in that video as well, that I think this is not something that was done, out of a vendetta. I don't think so, because there was a proper procedure followed as per the reports, and how exactly the agency came to conclusion that they had to raid Piyush Jain. There was a proper procedure followed, but I think what happened was the political parties tried to milk the situation, and that's where it actually went wrong. Because according to the reports, it was actually the GST team in Ahmedabad which found some problem with a transport carrier. They found some 200 fake invoices, and that's how the trail went. They first raided them, the transport carrier. Then they found that this guy has some connections with the Piyush Jain in Uttar Pradesh, and that's how the trail went on, and that's how they reached Piyush Jain. But the problem that happened is both the parties, I know it's election time, so they try to take credit for everything, and politics is played on every small thing. So one party tried to say, Baba, this is the Piyush Jain which created Samajwadi perfume, and he was the one who was providing all the money for the that party. The other party said, no, this is not our Piyush Jain. Ours was Pampi Jain or some Pushparaj Jain. He was a different person altogether, and that's how this confusion started. I think the agency itself did not have any agenda behind that particular raid. This is what I feel. मुझे नहीं लगता है कि कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला केस होगा। Exactly. एजेंसी अगर किसके पास रेड करने जा रही है तो डेफिनेटली वो उसी के पास जाएगी। अगर एजेंसी को किसी को टारगेट करने के लिए भी भेजा जा रहा है तो वो उसी के पास जाएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। तो मुझे लगता है कि पहली वाली रेड जहां पर पहले 177 फिर 280 फिर मतलब 280 करोड़ तक पैसे मींस Yes. कैश मिल रहा था, तो मुझे लगता है कि वो सही जगह पे गए थे। उसके बाद जो भी पॉलिटिकल बयानबाजी हुई उसमें बस सब लोग अपना अपना माइलेज ले रहे थे। बीजेपी बोल रही थी कि समाजवादी पार्टी का जिसने वो समाजवादी इत्र लॉन्च किया था ये वो है, फिर समाजवादी पार्टी बोलती है अरे वो तो हमारा है ही नहीं, और जब समाजवादी पार्टी ने बोली उसके बाद समाजवादी पार्टी वालों के ऊपर भी रेड गई। And I think now some other perfume traders are also getting raided. So I think it is a series now that is happening. Today we also saw a video where cash बड़ा counting cash machine was actually being taken there. 5 करोड़ रुपए के आसपास कुछ काउंटिंग हुई है कैश की। So I think मोहम्मद अयूब। Kannauj, that place in Uttar Pradesh has suddenly come into a lot of limelight. That it's a इत्रो का कन्नौज शहर। पहले परफ्यूम्स के लिए ही बहुत ज्यादा फेमस होता है। जितने भी वर्ल्ड क्लास परफ्यूम्स हैं वो कन्नौज से ही निकलते थे। और दूसरा बहुत अच्छा काम समाजवादी गवर्नमेंट ने उनके लिए किया था। उनके लिए एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया था। इसके बाद और भी उनकी जो परफ्यूम इंडस्ट्री है उसे बढ़ाने के लिए कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव का एलिगेशन है कि उनकी गवर्नमेंट गई और उसके बाद ये परफ्यूम ट्रेड जो है वो यहाँ से कम होने लगा। लेकिन मुझे नहीं लगता जितने पैसे मिले उसके हिसाब से कि परफ्यूम ट्रेड कम हुआ है यहाँ पर। अच्छा वो सब छोड़े, लेट्स टेल व्हाट डू यू सी हाउ इज इट गोइंग, कैसे जा रहा है उत्तर प्रदेश? इज इट स्टिल टिल्टिंग टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी या इट इज नाउ समवेयर कमिंग इन द सेंटर एंड इट कुड बी एनीबॉडीज गेम? व्हाट इज योर टेक? सोनू कनौजिया से स्टार्ट करते हैं विनय। यूपी इलेक्शंस की अगर बात करें ना, एक चीज जो इलेक्शंस के दौरान अक्सर देखी जाती है कि मोमेंटम हमेशा बदलता हुआ नजर आता है। पहले अभी जिस तरह से रैलियां हो रही है हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की रैलियों में बहुत भीड़ हो रहा है, बहुत मतलब
हद से ज्यादा भीड़ हो रहा है। और उसके बाद योगी की रैलियों में भी हम देखते हैं कि भीड़ आ जा रहा है, और ये एक मोमेंटम शिफ्ट होता रहता है, कभी अखिलेश की भीड़ इसमें भीड़, तो कभी मोदी के, कभी योगी के इसमें भीड़ आती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कुछ भी कहना या जज करना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ एक तरह से देख लिया जाए तो बीजेपी का यहाँ पर एक पड़ाव इस वक्त भारी लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट है, उनके पास मशीनरी है, और खुद को किस तरह से लोगों तक पहुंचाने का काम करना है, किस तरह से मशीनरी का यूज करना है, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। और दूसरी एक और चीज, अगर अभी मीन्स थोड़े दिन बाद या अभी पहले जिस तरह से हम लोग को लग रहा था कि अखिलेश यादव की इसमें इतनी भीड़ आ रही है, लेकिन लास्ट में एक बीजेपी हमेशा अपना मास्टर स्ट्रोक की तरह नरेंद्र मोदी की रैलियों को यूज करता है। और जिस तरह से लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि पहले माहौल कुछ और बन गया, और लास्ट में नरेंद्र मोदी आते हैं, 10-15 रैलियां कर देते हैं, और मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है, और जिस तरह से इलेक्शंस नजदीक आएंगे तो मुझे लगता है उसके बाद थोड़ी पिक्चर क्लियर होने लगेगी। मैं यहाँ पे ये मैं बोल बोल ले। मैं यहाँ पर बस ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश या बाकी और भी 4 जो राज्य हैं वो पूरी तरह से चुनावी माहौल में वो रंगते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रंग फीका करने के लिए कोरोना आ रहा है। अभी आयोग की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं, और कुछ यहाँ तक कि इस तरह की बयानबाजी भी विपक्षी दलों से आ रहा है कि हो सकता है शायद कि पोस्टपोन किया जाए इन राज्यों में चुनाव। लेकिन अगर बात करें कि किस पार्टी का पल्ला भारी है फिलहाल, तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो रैलियां हो रही हैं, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की जो अब तक की उन लोगों की टैक्टिक रही है, जो रणनीति वो अपना रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जा के इस तरह से लोगों को सौगात देना, अखिलेश योगी आदित्यनाथ द्वारा इस तरीके की जो योजनाएं परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने दौरे, तो जैसा भी हाल ही में शरद पवार जो बहुत दिग्गज नेता हैं, एनसीपी के हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि जो स्थिति अभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है वो 50-50 वाली है, क्योंकि बीजेपी ने भी मतलब जो स्थिति को भांपते हुए उन्होंने मतलब कई कदम उठाने शुरू किए हुए हैं। अब वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। अगर उन्हें अगर ये चीज़ का अगर अंदाज़ा होता कि नहीं यहाँ पे भैया हम तो आराम से आ जाएंगे, कोई इतना वो नहीं है, पिछली बार आए थे ये सब, तो ऐसा नहीं है, होने वाला है काफ़ी इसमें नेक टू नेक जो बोलते हैं फाइट वो होने वाली है, और किसी के भी पक्ष में ये मुकाबला जा सकता है। इसको लेकर ऐसा नहीं कहा जा सकता अभी फिलहाल के समय में कि किसी एक का पलड़ा भारी है। किसी यानी कि यहाँ पर 2 ही प्लेयर हैं, सिर्फ अखिलेश और 2 मेजर प्लेयर हैं अगर जमीनी स्तर पे देखा जाए तो। वैसे तो आम आदमी पार्टी भी है, शिवसेना भी शायद वहाँ पे अपने कैंडिडेट जैसे कि बहुत सारे राज्यों में करते हैं, पिछले चुनाव में हाँ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो बहुत सारे राज्यों में होते हैं। तो लेकिन अगर सीधा मुकाबला कहा जाए तो 2 व्हाट इज योर फीलिंग, आपको क्या व्हाट डू यू थिंक? I think, sir, first of all, the point that Akhilesh Yadav is drawing a huge crowd, from the past experiences, from past examples, I think bheed or a crowd, I am very doubtful whether it is a good parameter to judge whether there is a electoral swing in favor of one particular party. There might be swing in terms of people's sentiment or narrative going in favor of one party, but whether it is a perfect parameter to judge whether electoral swing is going in their favor is quite doubtful, because I remember even during Bihar elections there was a lot of talk about huge crowds that were being drawn by Tejasvi Yadav's rally, but then eventually we saw what happened in the result. So I am quite doubtful whether the huge crowd that Akhilesh Yadav is drawing currently is a good parameter to judge whether it will also translate into the votes that he will get in UP election. But the other part of it is, before election there is always this entire game of narrative and momentum. The campaigns that happen is to build a narrative, and that narrative is important so that it will, in the hope that it will translate into their electoral voting or whatever it is. So I think in that narrative game this time around Akhilesh Yadav has an upper hand over Yogi Adityanath. In terms of ground actions,
I don't know. There could be the situation could be completely different in terms of narratives, in terms of grabbing headlines. I think Akhilesh Yadav is has. यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। अगर बिहार इलेक्शन का जैसे आपने कहा कि वहाँ पर भीड़ तेजस्वी यादव की जो रैलियाँ थी उसमें काफ़ी भर भर के आए, वहाँ पर एक ये पहलू है कि वहाँ पर गठबंधन में कांग्रेस थी। अगर तेजस्वी की बात की जाए, आरजेडी की बात की जाए, तो जितनी सीटों पे वे चुनाव लड़े उनका स्ट्राइक रेट देखा जाए तो भीड़ वोट में कन्वर्ट हुई है वहाँ पर। अगर यहाँ पर अखिलेश यादव अकेले जा रहे हैं या फिर बाकी जो उनके साथ में जो दल हैं उनके साथ में अगर वो भीड़ कन्वर्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि बिहार में भी हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनके भी प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। सर आपको क्या लगता है? सी एक्चुअली लॉजिकली ये ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि भीड़ वोट में कन्वर्ट होगा या भीड़ वोट पे ना नहीं कन्वर्ट होगा, ये सब एनालिसिस जो है ना वो बहुत अनवेरिफाइड एनालिसिस है। बिल्कुल। ये कोई वेरीफाइड फैक्ट नहीं है कि अगर भीड़ आया तो वोट नहीं कन्वर्ट होगा या भीड़ नहीं आया तो वोट कन्वर्ट होगा। ये सब अटकलें हैं। मतलब ये से ना दैट लिसन यू नो व्हाट लॉट ऑफ भीड़ जुटाने के बहुत से तरीके भी होते हैं। राज ठाकरे अमेजिंग अमाउंट ऑफ people, but it doesn't translate into vote. But then at times even Sharad Pawar or I remember when R.R. Patil was alive, he would draw a lot of crowd, but that would translate into vote. So I think these are things which we cannot conclude on. Those are nothing. I do not believe there is. तरीके भी भीड़ जुटाने के बहुत से अलग अलग होते हैं। Correct. एक तो वो भी एक factor है। See, I think most important thing currently is Uttar Pradesh is something that Bharatiya Janata Party will leave no stone unturned to win Uttar Pradesh. Because if Uttar Pradesh is lost, Bharatiya Janata Party losing India tomorrow could be a possibility. So Uttar Pradesh is going to be very important. If Uttar Pradesh is lost, the presidential election may be in jeopardy as far as Bharatiya Janata Party is concerned. So Uttar Pradesh is very important. If Uttar Pradesh is lost, you see, Bharatiya Janata Party's internal politics and internal power struggle will take a different dimension. So Uttar Pradesh is very important. If Uttar Pradesh is lost, most important is the so-called partners of Bharatiya Janata Party, their alliance that they have across the country, the kind of clout they have across the country, those will be in jeopardy. And that is why I think Uttar Pradesh is going to be important. So for me, the way I see it, Bharatiya Janata Party, I will give 2 extra marks only because Bharatiya Janata Party is an election machine. More than a political party, more than an ideological campaigner, more than an ideological propagandist, Bharatiya Janata Party is an election machine. So as an election machine, this is when that machinery is going to run the maximum. This is when that machinery is going to be used the maximum. And due to that, I believe that they will not allow this to go out of their hand. They will do anything that is possible to ensure that they win this election, and that's why I think the chances are tilted towards Bharatiya Janata Party at this stage. Therefore, I am not saying Bharatiya Janata Party will win. Please, let's be very clear. I am just saying it's tilted to that. Secondly, that will to win. The only other person who I saw that will to win was Mamata Banerjee. The only other political party that has the will to win is Trinamool Congress. No other political party or political leader in India has that will to win. So, since there is no Mamata Banerjee in Uttar Pradesh, I think Bharatiya Janata Party, this thing is tilted. The situation is tilted towards Bharatiya Janata Party, and that's the thing. I'm losing my voice, so. Excuse me for that. Yeah. I think one interesting question that we have seen is the Uttar Pradesh election might be announced and the voting might take place in February, March, and it's just 1 month to go for the election, and Mayawati is nowhere to be seen. BSP is not even in picture in this particular election, and that I guess everybody is wondering about where exactly is Mayawati ji. कल भी एक ऐसी ही खबर आई थी कि मायावती पूरे इस इलेक्शन के सीजन में पूरी तरह से नहीं, मायावती क्यों? एक्चुअली सोनो, इफ यू गो टू सी मायावती क्यों, कौन है? वेयर इज चंद्रशेखर आजाद? वेयर इज रावण?
गायब ही हुआ, is आज gone. बड़े दिनों बाद वो भीमा कोरेगांव में मैंने आज उनका एक But वीडियो he's just देखा। gone because I thought he's going to be a major player in 2000. मायावती का रिप्लेसमेंट के रूप में हम लोग देख रहे थे, बट रिप्लेसमेंट बोले या कंपटीशन बोले या कुछ तो, बट आई थॉट ही विल गो टू प्ले अ मेजर रोल. अच्छा, दूसरी बात, one person who is rising but not, I mean, as in, like, it's a two-way fight, it is, and I'm sure it is strategically planned also. I think there would be a tacit understanding also, but one person who's rising is Priyanka Gandhi. Priyanka Gandhi is doing a fabulous job. She is rising as a politician, she is rising as a leader. Maybe she will end up being more popular in Uttar Pradesh than Rahul Gandhi after this election. This is what I think. राहुल गांधी को इतना मींस एक तरह से मींस वो भरोसा लोगों में नहीं दिख रहा था उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से लास्ट 2017 में उन्होंने जब कैंपेनिंग की राहुल गांधी ने और एफर्ट नहीं हमेशा लिया. से, हाँ, और हमेशा से प्रियंका गांधी को एक इंदिरा गांधी की जगह पे भी देखा जाता था, और प्रियंका गांधी को लेकर लोगों को एक अलग ही एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि ये राहुल गांधी से थोड़ी समझदार है, ऐसा लोगों के जहन में एक इमेज है. और उसके बाद भी अभी जो हम कैंपेनिंग देख रहे हैं प्रियंका गांधी की, तो वो काफी मैच्योर्ड कैंपेनिंग देखने मिलती है. और दूसरा, जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में ये जो नया उन्होंने लड़की हूँ लड़ भी सकती हूँ ये शुरू किया, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा वोट महिलाओं का वो कैटर करेंगे, लेकिन वो वोट्स किस तरह से उन्हें जिताएंगे ये मुझे नहीं लगता है कि वो मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी महिलाएं हैं, वो कितना वोट देने जाती है और उसमें से कांग्रेस को कितना मिलेगा. तो मुझे नहीं लगता है कि वो जिताने में उनको फायदा होगा, लेकिन हाँ पॉपुलर जरूर करेंगे महिलाओं के अंदर. और ये भी है कि इसके बाद जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी महिलाओं को कैटर करने के लिए अपना उन लोग अभियान शुरू कर दिया है. तो है प्रियंका. गौरी, व्हाट डू यू थिंक? What do you think? तेरे को क्या लग रहा है कि ये महिला हूँ दैट कैंपेन वो जो प्रियंका गांधी ने लॉन्च किया है, इज इट रेजोनेटिंग? मतलब क्या वो इज इट यशस्वी होईल का? हाँ, होईल का? सर, आपण मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे खरतर काय, बाप रे, वी आर गोइंग टू हैव वन मोर. अरे सर, मी यू नो, मराठीत बोलले नहीं ना. नहीं नहीं मी, हाँ बोल ना, तू बोल. मी आई टेल यू व्हाट, सी वन थिंग जस्ट बिफोर यू होल्ड ऑन दैट यू हैव टू आंसर दिस. You know, a lot of people have been writing to us that, you know, we should either, it's an English channel, so do it in English, or it's in, see, it's not about Hindi or English channel. This is insight into a newsroom. This is the language we use in our newsroom. We use Hindi, we use English, we use Marathi, and we are not going to edit anything and, you know, create a show and all. That is not what we are doing. This is how we talk, and we are just giving you a glimpse of how we discuss. So, for all the viewers who write into us saying that नहीं हिंदी में ही होना चाहिए या इंग्लिश में ही होना चाहिए, so please, this is not actually meant to be a show. This is just an insight. तर बिंदास आपण मराठीमध्ये बोला. ओके सर, तर काही दिवसांपूर्वी जे तिथल्या रॅलीजचे फोटो आले होते काँग्रेसच्या, ते बघितले, तिथली गर्दी बघितली, तिथला प्रतिसाद बघितला, तर असं वाटतं की हे कॅम्पेन कदाचित यशस्वी होऊ शकतं. पण आपण थोड्या वेळापूर्वी म्हटलं त्याप्रमाणे की ती गर्दी मतांमध्ये परावर्तित होईल का, हा मोठा प्रश्न आहे. त्याच्यामुळे आता मला असं सांगता नाही, पण जर गर्दी बघितली तर हो असं वाटतं. आणि कॅम्पेन खूप छान आहे, कारण उत्तर प्रदेशमध्ये महिलांना साधारण कशा पद्धतीने वागवलं जातं किंवा काय मान आहे किंवा तिथल्याचं गुन्ह्यांचं आपण महिलाविषयक प्रमाण बघितलं तर ते सगळं बघता कदाचित ते अपील होऊ शकतं. पण मतं किती मिळतील तो प्रश्न आहे. That is correct. I completely agree to her. What she is saying is what we said, that you see, don't convert. While it is resonating, people are liking it, people are accepting it, but will that translate into numbers of vote is a question. She says one has to wait and watch. I completely agree to you, Gauri. And secondly, but I tell you, as a strategy, I think it's a fabulous strategy. And I think as a need of the nation, I feel this is good. At least we are talking about empowering women. That's the best possible thing that is being spoken about in the last in so many elections. You know, it is so refreshing to know that we are talking about women empowerment rather than mandir, rather than masjid, rather than Hindu, rather than Hindutva. You know, it is so refreshing. So to that extent, I like that concept. But लेकिन इनका मीन्स अगर ये लड़की हूँ लड़ भी सकती हूँ ये सिर्फ यूपी तक रखेंगे तो मुझे लगता है कि
इनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, तो ये हर एक जगह उनको ये करना चाहिए। नहीं, यूपी में चालू किया है वो, यूपी में चालू किया, लेकिन सेम टाइम पे हमारे पास पंजाब के विजुअल्स आए थे, तो पंजाब में महिलाओं को जो प्रोटेस्ट कर रही थी उनको उठा कर डाला। नहीं, उस वक्त ये हुआ कि उस वक्त इनका ये जो कैंपेन चल रहा था, इस कैंपेन के अगेंस्ट लोगों ने भी बोलना शुरू किया कि ये सिर्फ के लिए थोड़ी ना। सुनो, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप बोल सकते हो कि स्ट्रैटेजी अच्छी है, स्ट्रैटेजी के बारे में भी नहीं, ठीक है, स्ट्रैटेजी एक तरफ, ये फैक्चुअली एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कोई भी करे, अगर ये कल बीजेपी भी करे तो मैं बोलूंगा ये फैक्चुअली एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। भारतवर्ष में विमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। भारतवर्ष में कोई भी सभ्य समाज में, दैट वाज गुड राइट, सभ्य समाज, कोई भी सभ्य समाज में विमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज गुड, इज व्हाट आई सेड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, वो उससे हम भी सहमत है, बट मेरा ये कहना है कि अगर आप एक नेशनल पार्टी हो और आप एक इस तरह का कैंपेन लेकर आ रहे हो जो नेशनली जो है काफी ज्यादा असर डालता है, तो आपको हर जगह पर उसको ध्यान देना चाहिए। जब आप यूपी में लड़की हो, लड़ सकते हो, बोल सकते हो, तो सेम चीज पंजाब में भी अप्लाई होना चाहिए। पंजाब में तो हुआ ही नहीं। एक पार्टी है जो कहीं पे मतलब गाय बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, कुछ राज्यों में गाय बन जाती है मुद्दा, और कहीं जब पहुंचते हैं तो वहां पर वो बोलते हैं कि भैया हम पावर में आएंगे। तो ऐसा है कि एक अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां अलग अलग रणनीति अपनाती, एक ही पार्टी एक ही चीज को लेके अलग अलग राज्यों में अलग बनाती है। तो शायद उत्तर प्रदेश में जो कर रहे हैं शायद उनके लिए वो हो। नहीं, गाय की बात अलग होती है, लेकिन महिलाओं को लेकर अगर तुम बात करो तो आप नेशनली महिलाओं को अपने एज अ वोटर काउंट कर रहे हो, तो ठीक है। आप दूसरे इश्यूज को लेकर अलग अलग स्टेट के हिसाब से, जैसे खाने को लेकर आप कर सकते हो कि चलो आप बीफ का इशू आप उत्तर प्रदेश में उठाया, लेकिन सेम गवर्नमेंट जो है वो गोवा में बीजेपी का गवर्नमेंट है, वहां पर वो बोलते हैं कि आप बीफ खा सकते हो। तो इन सब चीजों में हम समझ सकते हैं कि चलो थोड़ी बहुत ये हो सकती है, लेकिन जब महिलाओं को आप एम्पावर करने की बात करते हो तो आपको आपकी स्ट्रैटेजी इतनी साफ होनी चाहिए। I think I agree to you. What you are saying per se is, मैं भी एक्चुअली गलत समझा पहले। What you are saying per se is women empowerment जो है एक नेशनल मुद्दा है, नेशनल मुद्दा, और ये नेशनली बहुत ये रेजोनेट हो सकता है। That is what he is saying, correct? Yeah, I agree to you to that extent. He is saying ठीक है, ये जो नॉर्थ का मुद्दा है जो साउथ में नहीं चल सकता, साउथ का मुद्दा है जो नॉर्थ में नहीं चल सकता, वो अलग बात है, because that is, yeah, but this is a national issue because ये नॉर्थ में भी इतना ही relevant है जितना कई राज्यों में चुनाव लड़नी। You have to say, आरती, Yes, लड़ सकती हूँ यार, लड़। Basically, what I think is this is a sort of a brave move on the part of Congress party, because being a national party, they have to fight off BJP, which you rightly said is an election machine. They have to fight off a regional party, which is also very strong, that is Samajwadi Party. I mean, in the last assembly election, they did not perform well. Even in the Lok Sabha election, it was a very abysmal performance on the part of Samajwadi Party as well as BSP. But yes, we are somewhere seeing that there is a kind of momentum behind Samajwadi Party. And in all of this, I think Congress was feeling lost. As in, they could not get the ground, they could not get the pulse of the people of Uttar Pradesh कि हम exactly क्या करें तो लोगों से हम resonate होएंगे. I think this particular topic that they have taken, that they said that no, we will only focus on women. This strategy, I don't know if it is a strategy, whether it is a strategy, and even if it is a strategy, I think it's a good thing that they are doing it, because all the other parties, we have seen in the last few years, last many years, they have treated women as a part of their manifesto. They have never given that much space to women as much as they should have been given. Now, I agree that some parties like BJP came up with campaigns like Ujjwala Yojana, free cylinder. They came up with Swachh Bharat and toilet for all and all those things. I agree, these issues were there for women and they were addressed under these schemes of Bharatiya Janata Party. No. But I think women's issues don't just stop at chulha. No. Or I'm sorry. I'm interfering here, is because, Aarti, women's issue, chulha, toilet, and all those things, ये सब
इस पे सीमित नहीं होना चाहिए. Exactly, that's what I'm saying. I completely object to this is because that is a family issue, which is a woman, man, children, everyone. Yes, How yes. can it be just a woman issue? A woman issue, empowering women is giving power to women to govern the state. Exactly. A woman should be sitting in the governor's chair. A woman should be a chief minister of a state. A woman should be a prime minister of the country. A woman should be a minister of the country. That is empowering women. Chula chakki mein you are giving discount. So are you empowering women? I'm sorry, I don't accept that as an argument at all. And if somebody is going to put that as something that they're doing for women, absolutely no, that's not correct. So what? For men, what? You're making factory work faster? I mean, come on. That is unacceptable stuff. I think women empowerment has to be looked at in India. I mean, what I meant is, we need to ensure that the population which India, half of India is women. Right. And what is the percentage of women in parliament? That is the issue. Aarti, women has to govern. Women has to be sitting there in the chair, and women has to have power to govern. Women has to be there in the police. Women has to be there in the Indian administrative services. Women has to be there in political services. 50% of them has to be women. See what's going to happen then. Then there will be equality in gender. That's the power that we're talking about. And I'm with you. I'm with you, Sonu, when you say that I don't think Congress aake pura change karega, or Congress is serious about it, that Congress is going to make. But if India is going that direction, I am the happiest person in this world, because then I think then we are in the right direction. Then we are in a progressive direction. मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने यूपी में ये एक अच्छा पता नहीं उनका इंटेंशन क्या है. उनका इंटेंशन अगर चुनाव जीतना है तो फिर ठीक है, मीन्स वो उनके हिसाब से ये कर रहे हैं. लेकिन मेरा ये कहना है कि ये तो साफ है कि कांग्रेस यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत रही है. और दूसरा ये है कि जो स्ट्रैटेजी जिस तरह से वो महिलाओं को एम्पावरमेंट करने की बात कर रहे हैं, वो वोट्स में मुझे लगता है कि उतना कन्वर्ट होगा, वो जीत नहीं दिला सकता है. तो मुझे लगता है कि अगर जब आप इतना बड़ा रिस्क ले ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ 40% सीट महिलाओं को देने से बजाय 100% सीट देकर कांग्रेस ने कुछ करना चाहिए था. नहीं, वो ठीक नहीं है सोनो, बिकॉज 40% सीट इसलिए फॉर द सिंपल रीजन दैट एक जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. एक फिक्टिशियस रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ना करना है कि 100% सीट देके, वो फिक्टिशियस रिप्रेजेंटेशन होगा. नहीं, लेकिन जो 60% आप लोगों को सीट भी दे रहे हो वो भी जीतने वाले नहीं है. नहीं सोनो, देख, एक मैं बात बोलूं, मुझे लगता है लाइक आरती सेड, देयर इज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग. ये एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली है. कांग्रेस जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, कांग्रेस अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए लड़ रही है. ओके, लेट अस बी वेरी क्लियर. अगर कांग्रेस के खेमे में भी आप जाके पूछे कि भाई आप चीफ मिनिस्टर बनोगे, तो उनको भी मालूम है उन लोग नहीं बनने वाला. ओके, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस को पॉपुलर करेगी, स्पेशली अमंग्स द विमेन वोटर्स. ओके, ये कांग्रेस को पॉपुलर करेगी. और जो प्रोग्रेसिव वोटर्स हैं, जो एजुकेटेड वोटर्स हैं, ये वोटर्स जो है, ये वोटर्स को ये जो परसेप्शन अपना प्रपोजिशन है, सॉरी परसेप्शन नहीं, प्रपोजिशन है, वो प्रपोजिशन अच्छा लगेगा. सो लार्जर स्पेक्ट्रम में एक लार्जर स्ट्रैटेजी के तहत दिस इज अ वेरी गुड आइडिया. नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप 40% सीट दे रहे हो, राइट, चलो अच्छी बात है. आपके जो 60% जो अब सीट देने वाले हो, जिनको भी जो भी आपके हिसाब रहेंगे, उनमें से भी मैक्सिमम जो है वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे. चलो जो जीत सकते हैं, जो उनके बैठे हुए जो भी एमएलएज हैं, चलो उनको आप दे दो. लेकिन उसके बाद बचे हुए आप महिलाओं को दे दो, ताकि आप जो बताना चाहते हो कि बहुत हम यही वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, तो पूरी डेयरिंग के साथ सुनो, यही हमारे देश का प्रॉब्लम है. यही हमारे देश का प्रॉब्लम है. हम ना सिंबोलिज्म में यूज्ड टू हो जा रहे हैं. सिंबोलिज्म का एक कॉन्सेप्ट हमको यूज्ड टू हो रहा है. हमको हर एक चीज सिंबॉलिक करना है. अभी जो भी करना है सिंबॉलिक करना है हमको. ओके, प्रधानमंत्री जाके झाड़ू लेके रोड में साफ करके स्वच्छ भारत, ये हर एक चीज सिंबॉलिक हो रहा है. ये सिंबॉलिज्म ना, ये सिंबॉलिज्म से हम दूर भागना चाहिए. सुनो रियल. लेकिन कांग्रेस भी तो वही कर रही है ना. अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ कांग्रेस नहीं कर रही है भैया, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिंबॉलिज्म नहीं करना चाहिए. हुएवर करे, कोई भी करे, सिंबॉलिज्म नहीं करना चाहिए. नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर आप डेयरिंग स्टेप ले रहे हैं तो पूरी तरह से डेयरिंग स्टेप लो, ताकि आपके स्टेप को माय गॉड, ये डेयरिंग, सुनो, आप डेयरिंग से बोली कैसे रहे हो यार.
ये जो इंडिया में ना, इंडिया में 50% विमेन है, ये हमारा पॉपुलेशन है, 50% आर विमेन। 50% विमेन में, गौरी हंस रही है वहां बैठ के, आई डोंट नो व्हाई। 50% विमेन है, 50% विमेन में सुनो, हम बोल रहे हैं कि हमको 50% 40% विमेन को रिजर्वेशन देना चाहिए सीट्स में, पार्लियामेंट में। उसमें गलत क्या है, उसमें डेयरिंग क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि आप 100% दो ना। कमाल है यार, वापस सिंबोलिज्म की बात कर रहे हो। अरे तो बाकी वो मेल का क्या होगा फिर? अरे सोनो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कांग्रेस के इस पर्टिकुलर में चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। इस यूपी के इलेक्शन में जो कांग्रेस अपने जो भी 150 200 जो भी कैंडिडेट्स उतारेगी, मैं कह रहा हूं कि आप उनको दे दो ना। आप जीतोगे नहीं, अरे भाई सबको पता है, लेकिन आप कम से कम ये एक लोगों के सिंबोलिज्म बताओगे ना, एग्जांपल सेट, एग्जांपल नहीं, सिंबॉलिकली करोगे कि हाँ देखो हमने सिंबोलिज्म लगे। अरे यार, सिंबोलिज्म इज समथिंग वी नीड टू स्टॉप। दैट्स द आइडिया। सिंबोलिज्म को स्टॉप करना है, नहीं कि नहीं? आरती, तू चुप क्यों है? हाँ? I think I like to listen a lot. So No, nowadays she likes to laugh. But sir, हम उत्तर प्रदेश चुनाव के एक दूसरे का महत्वपूर्ण बोल सकते हैं एक पहलू पर आ जाते हैं यहाँ। मतलब इस पे आपको कोई बात ही नहीं करनी है? इस पे आपने कहा अच्छा है। अच्छा, चलो, एम्पावरमेंट एक अच्छा, आपने जैसे बताया कि अच्छी रणनीति है। आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स या टॉप पोजीशन पे महिलाएं होनी चाहिए। उसको लेकर भी कुछ जगहों पे ऐसे हुआ भी है कि जहाँ पे पार्टी चीफ महिलाएं हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं। ये भी एक स्टडी किया जाना चाहिए कि जब वहाँ पे कोई फीमेल लीडरशिप पोजीशन पे थी तो उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, उन्होंने उनके मतलब ये सब। तो एक बहुत ही एक काफी तह में जाने वाला एक विषय हो जाएगा। तो इसके लिए एक मिनट मैं आपको एक बात बोलूं, क्योंकि दो चीज है, तह में जाते हैं ना, कौन सा वैसे भी कौन सा अपने पास इतना टाइम की कमी है। मैं बोलूं एक बात आपको, टॉलरेंस टू विमेन in politics is more in Asian subcontinent than even in America. आपको मालूम है, बहुत सारे रिसर्च ने ये बोला था कि हिलरी क्लिंटन didn't win the election because Hillary Clinton was a woman and lot of people didn't want to vote for her. Okay, ये बात सही है. But as far as India is concerned, India is voting for women. India had a women prime minister, India had a women chief ministers, India had women governors, India had women president. Okay, India, हमको ये it was never an impediment for us, number one. Number two is, you know, women, आपका क्वेश्चन जो है ना, women आके women के लिए क्या किया, you know, मैं आपको एक बात बोलूं, I will take that as a good point. I will take that as a credit for us. You know why? Because you see, a leader, once he or she becomes a leader, then that he or she doesn't represent a gender or a caste or a creed or a ideology. That leader represents India. So जब आप एक विमेन प्राइम मिनिस्टर बनते हो तो आप एक विमेन प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हो, आप एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हो। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का काम ये होता है कि जितना मैन जितना वुमन, हर एक तबके के लोग, हर एक जेंडर के लोग को वो समीकरण, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल इससे देखना पड़ता है। सो दैट हैपेंड। सी सोसाइटी जो है, सोसाइटी को सी विमेन, जैसा सोनू ने बताया, टू अ वेरी मेजर एक्सटेंट आई डिसएग्री टू हिम ऑफ कोर्स, बट आई एम सेइंग सम पॉइंट व्हाट इज सेइंग इज, यू सी सोसाइटी में है, यू हैव टू क्रिएट लीडर्स, नो? आप किसी को पकड़ के इनी मीनी मानी मुंह करके एक लीडर को लाके नहीं सकते हो। आपको उतना लीडर्स क्रिएट करना पड़ेगा, आपको उतना इंडस्ट्री लीडर्स क्रिएट करना पड़ेगा, आपको उतना एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्रिएट करना एक प्रोसेस है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पर मैं आपसे बिल्कुल सहमत करता हूँ कि, लेकिन मेरा यहाँ पर कहना ये था कि एक चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होंगे तो वो किसी एक जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन समस्याएं जो हैं, महिलाओं की समस्याएं, जो उनके मुद्दे हैं, उनको कहीं एक कोई लीडर है जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट से आता है, कोई स्टूडेंट लीडर रहता है, तो उनकी समस्याओं को वो आगे जाके वो नेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे सब हो जाते हैं। लेकिन जो महिलाओं की समस्या है उनको भी तो शायद जो पुरुष रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मेल लीडर्स हैं, वो उतने अच्छे से नहीं निकाल पाते। लेकिन कहीं जगहों पे ऐसा भी होता है, तो क्या उतनी बखूबी से जो महिलाएं होती हैं, जो एक बार वो इलेक्ट होती हैं या फिर आगे तक पहुंच पाती हैं, तो वो किस तरीके से जो महिलाओं के मुद्दे हैं, ऑफ कोर्स वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में सिर्फ किसी एक
को नहीं, लेकिन वो उनका कैसा रहा है, क्या वाकई इससे फायदा मिलता रहा है, मिला है, ये है। तो मेरा बस यही इतना सा I कहना have था। one point to make here that Mhm. women's empowerment shouldn't be responsibility of women leaders alone. It बिल्कुल should बिल्कुल, be यही मेरा भी। responsibility of every leader in the country because एक- women's empowerment is a issue that concerns all. एक मिनट है, ये कैसा तेरा मुद्दा रहा है? मेरा मतलब इसने यही कहाँ मुद्दा बोला था था कि ऐसा? ये What did he say? women He के said- जरिए नहीं, नहीं, एक women- मिनट, मतलब- you said women लीडर होके women के लिए क्या किया? अब कैसा तेरा मतलब women चेंज होता है यार? मैं सवाल था कि ये एक तो स्टडी goalpost करना change चाहिए करने वाली कि बात मेल होगी। ने कितना किया, फीमेल ने कितना किया, वो एक अलग स्टडी का एक वो हो सकता है। हमें इतना ऊपर ऊपर से नहीं पता है कि किसने क्या किया, लेकिन ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि महिला, जैसे आपने भी कहा कि एक जब उतना पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो किसी को, ये सबकी एक मिलजुल कर इसके बारे में काम करना चाहिए, ना सिर्फ महिलाओं को, ना सिर्फ पुरुषों को। गौरी, what do you think? अगर एम्पावरमेंट की बातें हैं या फिर उनसे रिलेटेड पॉलिसी बनाना हो, कुछ भी हो, जो भी है, तो I think this newsroom, our newsroom especially, has a lot of women empowerment because we have More many women. more women than men in our organization. And you're proud of it. Yeah, and our Marathi team is entirely women. So All actually, women hats team. off to them because it's a all women team and they are doing a quite beautiful work. So Gauri, yes, women empowerment. You should be the one talking about it. सर मला असं वाटतं की असं नाहीये की महिलांचे प्रश्न हे एखाद्या पुरुषाला नाही समजू शकत किंवा पुरुषाचे प्रश्न हे एखाद्या महिलेला नाही समजू शकत किंवा वाईस वर्सा. मला असं वाटतं की ते करण्याची फक्त इच्छाशक्ती पाहिजे. नाहीतर एखादी महिला सुद्धा कदाचित पदावर येऊन काहीच करणार नाही आणि एखादा पुरुष ज्याला पद मिळालंय तो खूप काही करून जाईल. सो मला असं वाटतं की फक्त तो माणूस म्हणून कसा आहे आणि तो सध्या प्रॉब्लेम्स कडे खरंच तितक्या गांभीर्यानं बघतो का, त्याला त्याची जाणीव आहे का आणि त्याला ते करण्याची किंवा ते बदलण्याची इच्छा आहे का, यावरच सगळं असू शकतं. बाकी मला नाही वाटत की कोणाला जेंडर वाईज तरी आपण ठरवू शकतो की कोण कसं काम करू शकतं. और एक Very well अच्छी- said. Very well said. I'll Yes. just translate what she said. What she said is primarily what she is saying is, listen, it is not necessary that a woman can understand a woman problem and a man cannot understand a Yes, woman's problem. exactly. Both a man can understand a woman's problem, woman can also understand a Right. woman's problem. What she's saying is, finally, it is about the leadership to ensure that there is participation, to ensure that these problems are sorted out, and that should not be limited to a man or a woman problem. It should be the problem of the society to ensure that there is representation. Well said. Well said. और सोसाइटी का प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है ना कि ये सब चीजें जो होती है एक घर में जो अच्छे संस्कार मिलते हैं, मुझे लगता है वहां से ये शुरू होता है. अगर आपके घर से आपने शुरू किया है तो मुझे लगता है कि फिर चीजें अच्छे तरह से आगे बढ़ती जाती है. Correct. या फिर कोई मेल या फिर फीमेल कोई भी है जो अच्छी तरीके से जिसकी जो नहीं आया है, तो फिर उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. Correct. Well, I think we also have some questions coming in. Last time also we asked our viewers, asked our listeners to send in questions. So we have some questions, and I think this show, if we continue, it will go on and on. But we also have some time constraint. So I'm just going to take 2 questions out of it, and I think we all can put our views about the question. So the first question has come from Mr. Hussein Campwala. He is an active viewer of almost all of the content of the channel. So first of all, thank you so much for watching it religiously, and please do continue watching our channel because when you watch our content, and please do also engage, comment below it. And just like you have sent the mail, please do continue sending your thought process about the content. So that we also have a sort of feedback coming into us. So he says, and it's more of a statement that he is making, is a very elaborate question. He says, and I'm just going to read what he said. As the world evolves and India as a country, if it intends to compete with likes of US, Germany, France and all in that league,
The question is how hard it is for our politician to understand that actual work towards development will fetch you more votes than doing politics based on caste, creed, and religion. Now, we just this morning had a conversation about this, I think, in our newsroom, and there is a fantastic idea that we were discussing. Of course, Sujit sir was explaining it to us. So, I think there is one interesting perspective coming up on this question. He says further that votes based on religion and faith might only fetch you vote bank of a particular pocket of voters, while actual work in development opens the doors of getting votes from each and every corner. So why can't the politicians do politics on the basis of these issues, just like other developed countries in the world? Secondly, how hard it is for the Congress party to not understand that the whole narrative and depiction created by current ruling party is such that having leader figure other than someone from Gandhi family is enough booster shot for them to revive. It is out there in the open that people don't want to see the party being led by Gandhi family member. Appointing someone non-Gandhi in itself, he feels, will be the statement to masses, and it will also force the ruling party to change their strategy. It can help them immensely. And yeah, so that's what the question is. So basically there are two questions. First is, why is there not a development based politics, and why is it caste, creed, and religion based politics? And secondly, why is Congress not opting for a non-Gandhi face, knowing that if there is a Gandhi at the helm of the party, it will always be a plus point to the BJP, because they are going to attack it as a dynasty party. What do you say, Vinay? इनका प्रश्न काफ़ी मतलब वैलिड प्रश्न है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कांग्रेस पार्टी में जो शायद वो अब तक समझ नहीं पाए हैं, और पिछले 2 हार हो या फिर बाकी राज्यों में हार हो, तो एक उसकी वजह ये हो सकता है। जहाँ तक सुजीत सर का मुझे याद है कि वो डेवलपमेंट क्यों इशू नहीं होता, बाकी कास्ट, क्रीड और रिलीजन ये सब मुद्दा क्यों बनता है, आपसे वो समाजवादी पार्टी के लीडर उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया था, तो आप थोड़ा बता पाएंगे? नहीं, एक्चुअली यू नो, कौन बोलता है कि डेवलपमेंट में वोट मिलता है? हु सेज यू गेट वोट इफ यू डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट? यू सी, हम लोग ना, हमारे पे एक 2 क्वोशंट है, एक इमोशनल क्वोशंट होता है और एक रैशनल क्वोशंट होता है, ठीक है ना? हमारा वोट इमोशनल क्वोशंट पे गिरता है, फील गुड पे हमारा वोट ज्यादा गिरता है, डू गुड पे कम गिरता है. लुक एट व्हाट वाज द इमेजरी ऑफ मनमोहन सिंह. Look at what leader he was. Look at what he has delivered for this country. You see, हम UPA 2 के बारे में बात करते हैं. He was humiliated, he was insulted, he was done all. But have you ever thought what he has done for this country? Okay, और एक लीडर थे, हुआ करते थे, PV नरसिम्हा राव. Do you know what he has done for this country? You see, these were leaders who have been completely do-good leaders. Absolute do-good leaders. कहाँ हैं उन लोग? हिस्ट्री के पन्ने में उनको ढूंढना पड़ता है. The point is, somewhere down the line, what has India been celebrating? India has been celebrating leaders who are emotional, जो आप symbolism ये कर सकते थे, जो you know, जो क्या उसको बोलते हैं, शो यू नो, फील गुड फैक्टर्स जो ये करते थे. रियल मुद्दों में भारत ने वोट नहीं दिया है. अगर रियल मुद्दों में आप ये बोलोगे कि भाई हम इकोनॉमी को हम इंप्रूव करेंगे, आप मुझे एक चीज बताएं, किसको आपको व्यूअर्स किसको ज्यादा मिलेगा? अगर मैं आज कालीचरण का इंटरव्यू लूं एक चैनल में, और मैं रघुराम राजन का इंटरव्यू लूं, किसको ज्यादा वोट मिलेगा, किसको ज्यादा व्यूज मिलेगा? मेरे को बताएं. बिल्कुल. किसको मिलेगा? बोले, टेल मी, लेट अस टेल आवर एक्सपीरियंस. किसको ज्यादा व्यूज मिलेगा? कालीचरण को व्यूज मिलेगा. क्यों? क्योंकि लोगों को कालीचरण को देखने का है. रघुराम राजन जो बोलता है वो सुनना नहीं है. अपने एडिटोरियल की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब्स, जब हम जॉब के बारे में बात करते हो, इकोनॉमी के बारे में बात करते हो, हेल्थ के बारे में बात करते हो, 1/10 व्यूअर्स नहीं मिलता है. पर वही अगर एक सेंसिटिव टॉपिक, एक सेंसेशनल टॉपिक के बारे में बात करो, आपको व्यूअर्स लाखों में मिलता है. द पॉइंट इज, हम नहीं वोट करेंगे, तो जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ही गलत है. बिकॉज नहीं, इट इज रॉन्ग. इट इज नॉट दैट पीपल वोट फॉर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट हुआ तो वोट मिलेगा. डेवलपमेंट के साथ अगर आप इमोशनली दिखा भी सकते हो उसको, तब जाके वोट मिलता है. उसको इमोशनल एक इंटैंगल में लगा सकते हो, हिंदू खतरे में है, या हिंदुत्व है, या हिंदू राष्ट्र है, या वो राष्ट्र है, या ये राष्ट्र है, तो उसको वोट मिलता है.
और ये मैं सिर्फ हिंदुओं के बारे में बात नहीं करता हूँ, ओवैसी क्या करता है, वो भी तो यही करता है। सो ये जो है, यही सब जो है लोग उनके पीछे जाते हैं। जो ओरिजिनली जो बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट में हैं, उनके पास उनका फैन फॉलोइंग, उनको सुनने वाला लोग बहुत कम रहते हैं। आप एक सिंपल से उदाहरण दे रहा हूँ सोनू, मैं वापस एक पोडियम में खड़े रहो और आप बोलो कि भाईचारे से रहो, सब एक दूसरे के भाई जैसे रहो, सब प्यार मोहब्बत से रहो, सब अच्छे से रहो, आपको सुनने को 10 जन नहीं आएगा। आप वही पोडियम में खड़े रह के उगलो और देखो कितना जन आपको देखने को आएगा। इट इज अ फैक्ट, मैं कितना लीडर्स का नाम लूं जो करता है वो। सो इट्स अ फैक्ट। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? सी, हम अपना प्रॉब्लम दूसरे के सर पे झड़ रहे हैं, मतलब हमको नहीं मालूम किसको वोट देना है, डेवलपमेंट को कैसे वोट देना है, तो हम जो क्रिएट करेंगे वही लीडर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। लीडर मार्स से नहीं आता, वीनस से नहीं आता, जुपिटर से नहीं आता, अर्थ से ही आता है, हमारे घर से ही आता है, हमारे मोहल्ले से ही आता है। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? It was about Rahul Gandhi. Rahul Gandhi still doing. राहुल गांधी स्टिल डूइंग इट। ठीक है, गांधी परिवार से निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? सी, द इशू इज कोई है और LK अडवाणी को मोदी ने आके बाहर निकाला बिकॉज मोदी वर्क टुवर्ड्स बीइंग द चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी वर्क टुवर्ड्स बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने कैंपेन किया, गुजरात मॉडल बनाया, उन्होंने भारत वर्ष में जाके घूम के गुजरात मॉडल को प्रोपेगेट किया और वो प्राइम मिनिस्टर बने क्योंकि उनके अंदर जिद था प्राइम मिनिस्टर बनने को। मुझे एक आदमी का नाम दिखाओ जो कांग्रेस में ये कर पाए तो मैं जानूं, तो मेरे को बताओ, एक ऑल्टरनेटिव दिखाओ। मैं आपके इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण आपके लिए मैं एक उदाहरण भी दे सकता हूँ यहाँ पर मेरे सामने। मैं PV नरसिम्हा राव का नाम ले सकता हूँ क्योंकि उस समय शायद कोई सोनिया गांधी थी, जो भी थी, एक गांधी फैमिली से कोई नहीं था, लेकिन वो उन्होंने काम भी किया, आपने भी अच्छे तरीके से किया कि शायद ऐसा जरूरी नहीं है कि गांधी फैमिली में ही कोई अगर लीड करे उनको ही फेस भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गांधी फैमिली लीड करना चाहिए। आपको सच्ची बोलूं, मुझे भी लगता है गांधी फैमिली लीड नहीं करना चाहिए, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा क्या होता है कि तुम खाली करो फिर हम सोचते हैं लीडर कौन बनेगा। अरे लीडर, पॉलिटिक्स में लीडर ऐसे नहीं बनता है विनय, लीडर ऐसे नहीं बनता है। पॉलिटिक्स में कुर्सी को छीनना पड़ता है। पॉलिटिक्स में कुर्सी पे स्टेक्स अपना पुटअप करना पड़ता है, अपना क्लेम पुटअप करना पड़ता है, उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। अगर आप पॉलिटिक्स समझते हो तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा अच्छा ठीक है यार मैं बहुत हो गया यार, बोर हो गया चेयर में बैठ, क्या बेटा तू आ जा, तू ये चेयर में बैठ। ऐसा नहीं होता है। आप वो अगर 100 बरस का भी हो तो भी वो चेयर में बैठना चाहेगा। पॉलिटिक्स में आप उनको, पॉलिटिक्स, दैट इज व्हाट पॉलिटिक्स इज। एंड अब मैं सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। राजा महाराजाओं के टाइम पे भी ऐसे ही होता था। देखिए चेयर में बैठने के लिए क्या हुआ था महाभारत में, देखिए चेयर के लिए एफर्ट लेना पड़ता है, लीडरशिप के लिए आपको स्ट्राइव करना पड़ता है। मुझे वापस मेरा क्वेश्चन, मुझे एक आदमी बताएं कांग्रेस में जो लीडरशिप के लिए स्ट्राइव कर रहा है, जो कश्मीर में जा रहा है, कन्याकुमारी में जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, पंजाब में जा रहा है और बोलता है मैं लीडर हूं, मुझे लीडर बनना है। कौन है ऐसा? एक आदमी का नाम लो। कितने जन का? उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, आपको मालूम है एक पॉलिटिक्स ना अपने ऑफिस जैसा नहीं लगता है। उसमें फॉर्म नहीं भरना पड़ता है कि मैं इधर मेरा ये कवर करने के लिए जा रहा हूँ या ये इलेक्शन कवर करने के लिए जा रहा हूँ वगैरह, उधर फॉर्म भर के नहीं जाना पड़ता है। एक लीडर है तो लीडर खुद जाके ही कैन स्टार्ट, ही कैन वर्क, ही कैन गो टू अ पर्टिकुलर स्टेट, ही कैन लीड द पर्टिकुलर स्टेट। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में वो खुद अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए। कौन है वो लीडर? किधर है लीडर? कौन जा रहा है उत्तर प्रदेश में? सर यहाँ फिर से मैं आपसे असहमत हूँ इसके लिए एक बार उसमें मैं पहले भी बोला क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश चुनाव, पिछला अगर विधानसभा चुनाव अगर देखा जाए तो शायद आप सबको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था। एक लीडर थे, कोशिश कर रहे थे काफी ज्यादा वो कुर्सी के लिए, वरुण गांधी का नाम। पार्टी आला कमान की तरफ से उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया, कहा गया नहीं जा सकते। और मेरा सवाल यहाँ पे है कि अगर सोनिया गांधी यहाँ पर प्रेसिडेंट है, राहुल गांधी के पास में कमान है, या वो प्रेसिडेंट नहीं है, सारे डिसीजंस उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं। कोई बैंड बजा के, कोई ताशा बजा के आपको नहीं बिठाता चेयर में। आपको मालूम है जब नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनना था तो बहुत सारे लोगों ने बहिष्कार किया था गोवा सेशन का। LK अडवाणी गोवा सेशन में गए नहीं थे, सुषमा स्वराज, बहुत सारे लोगों ने बहिष्कार किया था गोवा सेशन का क्योंकि उनको नहीं बनना था, उनको नहीं बनाना था नरेंद्र मोदी को। पर नरेंद्र मोदी ने जा करके
गोवा सेशन अटेंड हुआ, गोवा सेशन सक्सेसफुल किया और वो खुद अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बताया. दैट इज व्हाट स्टेकिंग क्लेम इज. उसको बोलता है लीडरशिप. ऐसे बनता है लीडर. तो यहाँ पर तो गोवा की बात जब आती है तो फिर गोवा एक ऐसा स्टेट था जो कांग्रेस का स्टेट था, जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही थी, जहां पे अलायंस जो थे वो कांग्रेस के फोन का वेट कर रहे थे. कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, वहां पर ही कांग्रेस की सरकार चली जाती. तो इससे पता चलता है. मैं मुझे बताओ, ये जो जम्मू एंड कश्मीर के गुलाम नबी आजाद, अरे जो स्टेट कांग्रेस का था वो स्टेट नहीं है, खुद का स्टेट नहीं बचा पाया, उनको कांग्रेस लीडर बनना है. ओके. दूसरा वो जो कपिल सिब्बल, अरे दिल्ली में कांग्रेस का हर एक जन का डिपॉजिट गया और उनको लीडर बनना है. अरे आप फर्स्ट बॉल पे आउट होते हो और आपको क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना है. अरे आप परफॉर्म करो ना यार. यू परफॉर्म, देन स्टेक योर क्लेम, देन बोलो मुझे बनना है लीडर. और ऑपोजिशन आएगा, फाइट करो ऑपोजिशन को, उठा के फेंक दो ऑपोजिशन को बाहर. अगर तब जाके बोलो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को घर पे बैठे, दैट इज हाउ पॉलिटिक्स इज डन. उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं विनय. तो ऐसे भी इस तरीके से भी तो हुआ. अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, वहां पर कमलनाथ ने भी चुनाव लड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, फाइट किया, सब कुछ किया, जीत भी, सत्ता भी आई, लेकिन उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ आज कांग्रेस में नहीं है. सचिन पायलट के साथ में भी कुछ हद तक कहा जा सकता है कि वो, एक मिनट, किसके साथ ट्रीटमेंट हो गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एम्बिशंस थे, उनको अरे उनका एम्बिशन तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बनने का रहेगा, उनको नहीं मिला. वो जैसे ही पॉलिटिक्स में आए, उनको ये सब लोग डायनेस्टी पॉलिटिक्स है. ये लोगों ने इंडिया का पॉलिटिक्स को बर्बाद कर दिया है. ओके. बिकॉज जैसे ही वो पॉलिटिक्स में घुसते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, मोस्ट पावरफुल पर्सन बनना है. एक साल उनको अगर वो पार नहीं मिला तो कट्टी होके बाहर जाते हैं. अरे व्हाट इज इट? कन्हैया कुमार कब से पॉलिटिक्स में है? 2019 से आप उनको देख रहे हो. वो पॉलिटिक्स में कब से है? जब करेक्ट, जब वो 12th स्टैंडर्ड में था तब से वो पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में, और आज भी एक्टिव पॉलिटिक्स में. उनको एक एमएलए का चेयर है, उनको एक एमपी का चेयर है, पर उनकी इंथुसियाज्म में कोई कमी है, उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं. दैट इज व्हाट यू कॉल पॉलिटिक्स. वो कभी पार्टी में ये नहीं छोड़ा कि मेरे को मंत्री नहीं बनाया, मेरे को एमपी नहीं बनाया. ये 2 बार इलेक्शन हारा, पर भी फिर भी उनको मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है. अरे खुद का सीट नहीं जीत पा रहे और उनको मुख्यमंत्री बनना है. और ये अपने कन्हैया कुमार भी आइडियोलॉजी की बात किया करते थे. कन्हैया कुमार, हाँ, आज वो कांग्रेस पार्टी में. आज उनके भी अपने दोस्त बोलते हैं कि कहाँ क्या बातें, क्या आइडियोलॉजी का क्या, व्हाट इज व्हाट आइडियोलॉजी. लेफ्ट की बात, हमेशा जो विचारधारा है उसके तहत हमेशा बात करते थे. हाँ. उसको हमेशा प्रमोट करते थे, सब कुछ करते थे. आज उन्होंने वो छोड़ दी है. मेरे को एक चीज बोलो, मेरे को एक कन्हैया कुमार का एक स्टेटमेंट बताओ जिधर उन्होंने एक्सट्रीम लेफ्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में प्रोपोगेट किया हो. एक स्टेटमेंट बताना. उनका आइडियोलॉजी सेक्युलर आइडियोलॉजी था. सेक्युलर आइडियोलॉजी में वो कम्युनिज्म हो या वो कांग्रेस हो, सेम है. क्या डिफरेंस है? एक्चुअली कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी लेफ्ट की ओर थोड़ी टिल्टेड दिखती है. करेक्ट. तो वो मुझे लगता है कि जो लेफ्ट की ओर ज्यादा टिल्ट होता है वो लिबरलिज्म और इन सब चीजों की बात करता है, सवाल पूछने और जवाबदेही वाली बात करता है. तो मुझे लगता है कि उतने हद तक ठीक है. और कन्हैया कुमार को इतने जल्दी ये नहीं कह देना कि वो किसी पार्टी से छोड़ के आ गए. He's just starting it. मैं कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि अगर किसी को लीडर बनना है तो नरेंद्र मोदी जैसा लीडर बनो, जो एक साधारण वर्कर से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचे. उसको बोलते हैं लीडरशिप. ओके. कन्हैया कुमार जैसा वर्क करो, जो आप वर्क कर रहे हैं, वर्किंग इज वे अप. ओके. अरविंद केजरीवाल जैसा करो. They are working their way up. They came from the road. They fought in the streets and they are coming up. Even Mamata Banerjee, absolutely. Mamata Banerjee, Amit Shah. See, these are people who came from the people. They have come from the streets of the country and then they have grown to be what they are. अरे वैसे पॉलिटिक्स में लीडरशिप बन जाता है. कोई ताशा बैंड बजा के थोड़ी ना बिठाता है. मैं इसके लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी ने कोई रोड से आया है, वो भी ऊपर से ही आ गया है, वो भी पैराशूट करके ही बैठा है उधर. पर अनफॉर्चुनेट है ये विनय, अनफॉर्चुनेट है ये. इसके लिए मैं बोलता हूं कि हम, मतलब तुम एक्चुअली आगे चल के ये सोचना चाहिए कि तुम लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहिए. यू शुड थिंक ऑफ ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स.
you should think of getting into active politics. क्योंकि जब तक नॉर्मल लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तो ये इनके ही बेटे पोते परपोते भांजे साले साड़ू यही सब आ जाएगा. कुछ तो डिजर्विंग होते हैं बहुत सारे, मतलब कुछ होते हैं जिनका एक्सेप्शन ऑफ द रूल है रे विनय. उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक्सेप्शन टू द रूल है. ठीक है चलो हो गया. हमेशा अभी Well, I think this debate concludes with the opinion that there should be different people participating in politics. And as far as Congress party is concerned, I think it is the leaders of the Congress party that should also take initiative, that should also show the enthusiasm and ambition to become the leader of the party, not just seek Gandhi family's approval that please make us leaders, but I think they should also take up the responsibility. They should also deliver for the Congress party, and then they can stake the claim to lead the Congress party. So it is not really up to Gandhi family. I mean, yes, up to certain extent, yes, it is up to Gandhi family. If they can make other person the leader of the party, they can. No, I don't conclude that way. Gandhi family is nobody to make anybody the leader. They are nobody. They are just like another citizen of this country. Who are they to make anybody leader or not leader? It is the people, the person concerned. It is the Shashi Tharoors. It is the Kapil Sibbals. It is this Prithviraj Chauhans. It is these 123, G23, G24 and all that. These are the people who should strive to be the leaders. Who is Gandhi to make anybody leader or not leader? उससे तो छीनी जाती है. Correct. Absolutely correct. Sorry, Aarti, I interjected. Well, I think we should take another question. It's not a question. It's just an opinion. It's a feedback. I think we should read it, and then I think time constraint, we should end this video after this particular question. So this question has been sent by Ayush Yadav. He has been viewer of HW News Network for over 3 years. So that's a lot. That's nice. Ayush, thank you. I guess Ayush has been viewing us from since the time we started. So thank you so much for viewing us, staying with our channel for so long. He then also wants to give condolences to the entire team on the loss of his most favorite journalist, Padma Shri, Mr. Vinod Duaji. Thank you. Thank you, Ayush. We actually do miss Mr. Vinod Duaji, because these kinds of conversation, he would always have some unique perspective on it. He says that he wrote in for the podcast after seeing a report on sedition being imposed on Kali Charan for his hate speech. He says he is in complete agreement with the HW's editorial position that a civilized society has absolutely no place for sedition, and the sedition law should be scrapped in our country. But on the other hand, people like Kali Charan, who have spread the poison of communalism, do not get away with giving such hate speeches. So do you think rather than sedition we need stronger hate speech laws, or just better execution or implementation of the existing hate speech laws? Are you looking at me for an answer? Yeah, kind of. See, But yes, I'll tell you what. This is a very imperative question. See, a sedition on somebody who may not be conducive to your ideology seems to be fair. A sedition for somebody who is thinking on your lines seems to be unfair. So, like we always say, what is good for the geese should be good for the gander. It cannot be different. The point is, sedition as a law, I think, personal view, this is my humble view, should be scrapped. It's a draconian law, and it should be scrapped out of Indian penal code. It should not be part of our penal code anymore. It is a draconian law. It was there. It is these are laws which British had come and gotten so that they can torment Indians. This shouldn't be done to our own people. Number one. Number two is freedom of expression is fabulous. Freedom of expression should be there. Anybody should be should have the right to say anything that they want, till such time that it doesn't harm the sentiments of another community, of another people. You see, I will never vouch for even Kali Charan, though I thought that was the most ridiculous statement that a person can make, but I would still view that as a statement of a 8th standard or 9th standard
student or uneducated person who doesn't know much of history, who spoke about whatever history he has learned from possibly WhatsApp University, I would leave it at that. And I would still say that, listen, if we want to be tolerant, let's be tolerant the whole 100 yards. Let him say what he wants. We have to understand what it is right. We know what is right and we know what is wrong. Is our ideology, is our thought process, is what we believe in so fragile that by some guy saying somewhere it is all going to crumple? Is it that? It's my ideology. For me, Mahatma Gandhi has been an idol right from my childhood, and he still remains to be. He's possibly one of the most revered person in my life, and he will still remain till I die. I don't think a Kali Charan can make a difference to that. I am very secure about what I believe in. Why are we not? So let him say what he wants to say. You can always have the right to condone and criticize what he said or tell what he said is wrong. But for getting him behind bars and all that, I'm not for it. ये वक्त आ चुका है कि सेडिशन जो हमारे यहाँ जो लॉ है उसको एक खत्म करने की जरूरत आ चुकी है, क्योंकि जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो फिर वहां पर सेडिशन जैसे लॉ की जरूरत क्या है? तो फिर अगर हम सेडिशन लॉ रख रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जरूरत नहीं है। तो दोनों में से किसी एक को रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि पूरा देश फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ ही रहना चाहेगा। और सेडिशन की भी अगर बात करें तो ये पैमाना तय कौन करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और कि पैमाना होगा कितना। गवर्निंग जो गवर्नमेंट है वो तय करेगी, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे तय करेगी कि कौन सेडिशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मुझे उस दिन भी मैंने इस पर बोला था कि जब ट्रम्प के ऊपर बैन लगाया गया था ट्विटर पे, तो जैक डॉर्सी ने बोला था कि यार मुझे नहीं लगता कि ये सही है कि उसका अकाउंट हम बंद कर दें। वो बोला कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को करप्ट करने वाली बात हो गई। तो मुझे लगता है कि जैक डॉर्सी ने वहां पर जो इतनी बड़ी मीन्स इतना दूर जाके सोचा, तो हमको भी इतना दूर जाकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि यार दो चीज अल्टरनेटिव इस तरह की चीजें एक साथ नहीं रह सकती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक चीज को खत्म करें, और इसको लाने का रीजन ही हम सबको पता है कि क्या था, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इसको अगेंस्ट यूज किया था और उसके ड्रॉबैक्स कितने किस तरह से यूज किया जा रहा था। और आज सबसे दुख की बात यह है कि अब एक ट्रेंड हो चुका है। अब लोग कहते हैं कि बीजेपी ने शुरू किया कि हर एक कानून लोगों के ऊपर लगा दो, सीबीआई, ईडी ऐसे करके ये सब कानून लगा दो, एनएसए लगा दो, ये सब चीजें लगा देने की शुरुआत हो चुकी है। और अब ऐसा लगता है कि कालीचरण के एपिसोड के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट भी वही कर रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट भी सेडिशन जैसी चार्जेस लगा दे रही। तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाली गवर्नमेंट है, कौन बोला कांग्रेस गवर्नमेंट महात्मा नहीं, गांधी के मतलब आदर्शों में चलने वाली गवर्नमेंट बात करती है, मींस अलेजिडली चलने वाली है। तो मुझे लगता है कि जो इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है, तो मुझे लगता है कि वो भी अब उस गवर्नमेंट के रंग में रंगती जा रही है जो इन सब कानूनों को लगा रही है। तो ये एक फैशन बनते जा रहा है कि ऐसे कानूनों को लाओ, लगाओ और लोगों को परेशान करो। I'll talk तो about वक्त खत्म हो चुका है, yes. इन सब कानूनों को हटा दिया गया। I'll talk about the other part of the question, which was about hate speech laws. Yes, I think there should be strong hate speech laws in the country because, first of all, because of hate speech, there are no strong hate speech laws, and because the implementation of hate speech laws, I will say, is not equitable in cases where it should be. So I think there should be equal implementation of the hate speech laws as well. And on the other part, my colleagues already spoke, but I'll just say one last question. I'll just say one last statement, because I believe when I did that video, there was this one beautiful thought that came to me. When Mahatma Gandhi did not want his critics to be jailed for their views or for their criticism towards him, then why do we feel that we have to ban somebody, we have to jail somebody for his views on Mahatma Gandhi? Well,
किसी ने बहुत अच्छे से बोला, हिंदी में बोला है कि कोई कुछ भी करने दो, मे बी दे विल वांट महात्मा गांधी डेड, दे विल वांट महात्मा गांधी टू नॉट बी देयर इन द हिस्ट्री, दे वांट हिम टू बी अ विलन इन द हिस्ट्री, बट गांधी कभी मरते नहीं हैं। ये किसी ने बहुत फिल्म खूबी का से बोला डायलॉग था कि वो एक आइडियोलॉजी है। गांधी कभी मरते नहीं है। सो आई थिंक सच स्टेटमेंट्स, yes, it was outrageous, whatever abuse, whatever insult that was, it was outrageous, it was, some people might have got offended by it, but was it, did it require a jail or did it require a sedition case? Then I believe no, not for the IPC statement that he made against Mahatma Gandhi. No. इतने आईपीसी में इतने सारे लॉज हैं, इतने सारे हमारे पास, ये उनमें से लगा कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए। बट बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे भी दो पहलू होंगे। सेडिशन की बात, देशद्रोह की बात अगर किया जाए तो शायद उतना हद तक उचित नहीं है, लेकिन इस तरीके के जो हेट स्पीचेस होते हैं, जो इस तरीके के भड़काऊ भाषण होते हैं, उन पे भी कंट्रोल रखना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सामाजिक ताने बाने को है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, सब करते हैं। तो कुछ हद तक इन पर कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो कहते रहे, समाज की भावनाएं यहाँ पर लोगों को इंसाइट करते रहे, सब करते रहे, इतनी भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए कि इतने बड़े। तो फिलहाल ये हमारा जो चर्चा था काफ़ी लंबा हो गया था। I think we are 10 minutes ahead of our time. So time constraint से 10 मिनट हम लोग आगे, so I think we are going to end our podcast here for this episode. We will meet you next episode, in the next episode, and please do write to us because we also take those questions that you send us. So please, if you have any question, please do send us on news@hwnews.in. Bye bye. Bye.